صدر مملکت آصف علی زرداری نے آئندہ مالی سال کے لیے فائنانس بل کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کے ایڈوائز پر آرٹیکل 75 کے تحت مالیاتی بل کی منظوری دی۔ فائنانس بل 1 جولائی سے لاگو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اجلاس، پاک پی ڈبلیو ڈی کی تحلیل اور متبادل انتظامات سے متعلق امور کا جائزہ۔ جاری منصوبوں کو متعلقہ وفاقی اور صوبائی اداروں سے مکمل کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی محکمے کی تحلیل کے دوران ملازمین کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت۔ پی ڈبلیو ڈی کے اثاثوں کا ریکارڈ ڈیجیٹائز کرنے کا حکم۔ معاشی حالات خزانے کو نقصان پہنچانے والے اداروں کو مزید بوجھ برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، اربوں روپے مالیت کے 19 منصوبوں کی منظوری۔ شاہراہ قراقرم کے تھاکوٹ رائے کوٹ سیکشن کی ری الائنمنٹ کے لیے فنڈز منظور۔ کراچی میں نکاسی آب گرین لائن BRTS منصوبے شامل۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نظر ثانی شدہ منصوبہ منظور۔ سندھ میں متاثرین سیلاب کی بحالی اور مکانات کی تعمیر۔ بلوچستان میں سیلاب سے بچاؤ کے منصوبے منظور۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا مراکش کے شاہ محمد ششم کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ شاہی خاندان اور مراکش کے عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت SIFC کی کاوشیں۔ زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں میں نمایاں بہتری۔ پاکستان اور خلیجی ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے دبئی کی کبالر آف فوڈز کی شراکت دار کمپنی بسام کارنوہ کے وفد کا خانوال میں پیروال زرعی اور لائف سٹاک فارمز کا دورہ۔ اسرائیلی فوج کے مظالم جاری، غزہ پر حملوں میں شدت، مزید 40 فلسطینی شہید، 224 زخمی۔ نہتے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ صہیونی فوج کا غزہ میں پانی فراہم کرنے کے مقام پر حملہ، 4 افراد شہید۔ شجاعیہ محلے سے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 60,000 ہو گئی۔ عرب لیگ، یورپی یونین، سعودی عرب، مصر اور قطر کی مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی قانونی حیثیت دینے کے لیے اسرائیل کے فیصلے کی مذمت۔ ایران کے صدارتی انتخاب میں کوئی بھی امیدوار مطلوبہ 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکا۔ 5 جولائی کو دوسرے مرحلے میں مسعود پزشکیان اور سعید جلیلی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 2,40,00,000 سے زائد افراد نے حق رائے استعمال کیا۔ روس کا یوکرین پر ڈرون اور میزائل حملہ، 11 افراد ہلاک۔ جنوبی قصبے پر میزائل حملے میں 2 بچوں سمیت 7 افراد ہلاک۔ مشرقی علاقے ڈونیسٹک پر حملے میں 4 افراد ہلاک۔ یورپی دوست ممالک اسلحے کی فراہمی تیز کر دیں ورنہ انسانی جانوں کا بہت نقصان ہوگا، یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی۔ روس کا بھی یوکرین کے ڈرون حملے میں 5 افراد کے ہلاک ہونے کا الزام۔ سکھ رہنما کے قتل کی کوشش پر امریکہ کی بھارت سے ایک بار پھر جواب طلبی۔ مودی انتظامیہ نے گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کے لیے کرائے کے قاتل ڈرگ ڈیلر نکھل گپتا کی خدمات حاصل کی، جو امریکی انٹیلیجنس اہلکار نکلا۔ سازش بے نقاب ہونے پر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مودی سرکار کو دوبارہ انتباہ جاری۔ بلوچستان کے قدرتی وسائل کے معاشی فوائد کا مقامی افراد کو منتقلی کا سلسلہ جاری۔ آئل اینڈ گیس کمپنی MPCL کی جانب سے بولان، کوئٹہ، زیارت اور ہرنائی میں صحت، تعلیم، واٹر سپلائی، بجلی اور گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے منصوبوں سے مقامی افراد کو روزگار کے وسیع مواقع میسر آئے۔ مستحقین کے لیے 45 گھر بھی تعمیر کیے گئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پارلیمانی نظام کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد عوام الناس کو پارلیمان کی اہمیت اور جمہوری اقدار سے روشناس کرانا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب، میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ نوکنڈی 47، بہاولپور دالبدین 46، سبی، دادو، بھکر اور جیکب آباد میں 45 ڈگری سینٹی ریکارڈ درجہ حرارت۔ شام یا رات کو شمال مشرقی پنجاب، جنوب مشرقی سندھ، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔
भारत ने टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर दूसरी मर्तबा टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 7 रन से कामयाबी। विराट कोहली ने 59 गेंदों पर 76 रन की इनिंग्स खेली। अक्षर पटेल ने 31 गेंदों पर 47 रन स्कोर किए। कोहली मैच और जसप्रीत बुमराह टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वर्ल्ड कप के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए गए। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। रोहित शर्मा ने 159 टी20 इंटरनेशनल्स में 5 सेंचुरीज और 32 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 4,231 रन बनाए। विराट कोहली ने 125 टी20 इंटरनेशनल्स में भारत की नुमाइंदगी की और 1 सेंचुरी और 38 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 4,188 रन स्कोर किए। दोनों खिलाड़ी वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में भारत को दस्तयाब रहेंगे। जर्मनी में यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप यूरो कप 2024 मेजबान जर्मनी ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। राउंड ऑफ 16 में जर्मन टीम ने डेनमार्क को 2 गोल से हरा दिया। दिफाई चैंपियन इटली का लास्ट 16 में सफर तमाम। स्विट्जरलैंड ने इटली को 2 गोल से मात देकर इवेंट से चलता किया। मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। और फ्रांस में 21 मराहिल पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस टूर डी फ्रांस का आगाज। पहला मरहला मुकामी साइकिलिस्ट रोमेन बार्डेट ने जीत लिया। बार्डेट ने 206 किलोमीटर का फासला 5 घंटे 7 मिनट और 22 सेकंड्स में तय किया। नीदरलैंड्स के फ्रैंक वैंडेन ब्रोइक दूसरे और बेल्जियम के वोट वैन अर्थ तीसरे नंबर पर रहे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने आइंदा माली साल के लिए मालियाती बिल की मंजूरी दे दी है। सदर ममलकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर आर्टिकल 75 के तहत मालियाती बिल की मंजूरी दी है। मालियाती बिल कल से लागू होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें पाक PWD की तहलील और मुतबादिल इंतजामात से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने महकमे की तहलील का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत की। उनका कहना था कि इस दौरान मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि माशी हालात मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इजलास में फैसला किया गया कि PWD के तहत जारी मनसूबों को मुतलका वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल कराया जाएगा। तहलील के बाद सरकारी तामीर और मरम्मत के लिए बैनुल अक़वामी मयार की निजी कंपनियों की खिदमात हासिल की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि PWD के असासों का रिकॉर्ड मुकम्मल डिजिटाइज किया जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि महकमे के असासों के इंतजाम के लिए ईस्ट मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी जाएगी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अरबों रुपए मालियत के 19 मनसूबों की मंजूरी दे दी। एक्निक का इजलास नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की सिफारिशात पर गौर किया गया। इजलास में मंजूर किए गए मनसूबे सैलाब मुतासरीन की बहाली, मवासलात, हवाबाजी और दीगर शोबों से मुताल्लिक हैं। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों की तामीर नौ और बहाली के मनसूबे मंजूर कर लिए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में बलूचिस्तान में तामीर नौ के मनसूबों के लिए 11 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सिंध में नस्ल शुदा फ्लड रिस्पॉन्स एमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की लागत का तखमीना 296 अरब रुपए है। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध में मकानात की तामीर नौ के इक़दामात में अपना हिस्सा फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इजलास में कराची में निकासी आब ग्रीन लाइन BRTS को ऑपरेशनल करने के नज़र शुदा PC1 की भी मंजूरी दी गई। एक्ने ने CPAC के तहत थाकोट रायकोट सेक्शन की री अलाइनमेंट और न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नज़रसानी का PC1 मंजूर कर लिया। गवादर का नया हवाई अड्डा कैलेंडर साल में ऑपरेशनल हो जाएगा। एक्निक ने लवारी टनल तक राबता सड़कों की तामीर और जागरा हाइड्रो पावर स्टेशन के लिए फंड्स भी मंजूर किए। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सेहत सहूलत प्रोग्राम को दिसंबर तक तौसी देने का भी फैसला किया।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मराकश के शाह मोहम्मद शिशम की वालिदा शहजादी अल्ला लतीफ़ा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने शाह मोहम्मद शिशम की वालिदा के इंतकाल पर शाही ख़ानदान और मराकश के अवाम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने मरहुमा की मग़फ़िरत और लवाहिक़ीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। अपने बयान में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पूरी कौम की जानिब से शाह मोहम्मद शिशम से उनकी वालिदा शहजादी अल्ला लतीफ़ा के अफसोसनाक इंतकाल पर दिली ताज़ियत किया है। सदर ममलकत ने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहुमा को अपने जवार रहमत में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद करे। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि पायदार तरक्की के हुसूल के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वो लाहौर में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे मोहम्मद सुफियान अपनी रिपोर्ट में। पीटीवी होम के प्रोग्राम पैगाम पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि दुनिया में जिस मुल्क ने भी तरक्की की उसने सियासी इस्तेहकाम के साथ इस्लाहात और तसलसल को कायम रखा। वफाकी वजीर ने कहा कि 3 दहाइयों कबल पाकिस्तान जनूबी एशिया का सफ़े अव्वल का मुल्क था, लेकिन हम अपनी इनफरादी कारकर्दगी और हुनर को इज्तमाई कारकर्दगी में ढालने में नाकाम रहे। इनफरादी तौर पर हमारे पास अहल लोगों की कमी नहीं है, फिर क्या वजह है कि हमारी इनफरादी मेहनत, हमारी इनफरादी सलाहियत कारगर नहीं हो रही। वफाकी वजीर ने कहा कि सवात, जड़ांवाला और सरगोदा में जो वाकयात हुए उनसे मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि चंद लोग इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं और लोगों के जज्बात को उभारते हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत का फर्ज है, पाकिस्तान के उलमा की अक्सरियत का फर्ज है कि ये चंद लोग जो पाकिस्तान में इस्लाम की गलत ताबीर करके इस्लाम की अपनी सियासत की खातिर ताबीर कर कर हमारी बदनामी का बायस बनते हैं, हम उनके मुकाबले में कौम को यकजा करें। तकरीब से पैगाम पाकिस्तान प्रोग्राम के मेज़बान कारी सैयद सदाकत अली समेत सीनियर सहाफ़ी मुजीबर रहमान शामी और उलमाए कराम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पीटीवी होम के प्रोग्राम पैगाम पाकिस्तान के जरिए मोहब्बत और खुलूस को नाजरीन तक पहुँचाया गया और पाकिस्तान के मुस्बत चेहरे को उजागर किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने शुरुका, जनरल मैनेजर पीटीवी लाहौर सेंटर कैसर शरीफ और प्रोग्राम प्रोड्यूसर में तारीफी असनाद और शील्ड्स भी तकसीम की। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा है कि इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि खवातीन की हर शोबे में नुमाइंदगी जरूरी है। इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खवातीन को विरासत में हिस्सा न मिलना अहम मसला है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। जनूबी एशिया में इंक्लूसिव जस्टिस यानी सिनफी इम्तियाज के बगैर इंसाफ सब के लिए उन्वान से इस्लामाबाद में जारी सिंपोजियम में निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने के लिए मुशावरत की गई। सिंपोजियम से खिताब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मसला आइन और कानून का नहीं, इस पर सही तरीके से अमल दरामद का है। In Article 25, which says that making any special provision for protection of women, so you can introduce special laws for women's specific, and there are such laws. For instance, in jobs, in government jobs or public sector jobs, you can fix a certain percentage that for women. Steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे मुल्क की कुल आबादी का निस्फ खवातीन है और अदलिया में इनका तनासब 16% है। खवातीन को इस शोबे में आने के लिए उनकी हौसला अफजाई करना होगी। Constitution allows us to discriminate in favor of women or take that affirmative action, and read with the principle of policy, which is Article 34, which says that steps shall be taken to ensure full participation of women in all affairs of national life. सिंपोजियम में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों और कानूनी माहिरीन ने जूम के जरिए और बाय रास्त निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने के लिए अपने अपने तजुर्बात शेयर किए। मुकर्रीरीन का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से पाकिस्तान में मुकदमात की लाइव नशियात शफाफियत की जानिब एक अहम कदम है। इंसाफ की फराहमी किसी भी माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और ये सिर्फ ऐसी सूरत मुमकिन है जब इंसाफ किसी का इस्तेहकाक नहीं बल्कि पैदाइशी हक समझ के किया जाए। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत SIFC की काविशें ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों में नुमायां बेहतरी आने लगी।
پاکستان اور خلیجی ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے دبئی کی کبالرو فوڈز کی شراکت دار کمپنی بسام کارنوہ کے وقت نے خانوال میں پیرووال زرعی اور لائیو سٹاک فارمز کا دورہ کیا۔ دورے کا مقصد گوشت کی عالمی منڈی میں پائیدار سپلائی چین کی دریافت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور خلیجی ممالک کے مابین باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا ہے۔ دورے کے دوران وفد کو بتایا گیا کہ فارم گرو ایگری لائف سٹاک میں ایک منفرد کمپنی ہے جس کا مقصد قومی سطح پر خوراک کے تحفظ، درآمدات کے نعم البدل کی تلاش اور برآمدات کے لیے نئی راہیں تلاش کرنا ہے۔ برآمدات کو بہتر بنانے کے لیے فارم گرو زرعی اجناس کی قدر میں اضافے کے ساتھ ساتھ نسل میں بھی بہتری لا رہی ہے، جس کی بدولت عام کسان کو بھی فائدہ ہوگا۔ فارم گرو کے ذریعے مادہ مویشی کے رحم سے باہر بیضہ کی لیبارٹری میں فرٹیلائز کیا جاتا ہے، جس کے باعث ایک تندرست جانور کے بیضہ سے متعدد بچے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ان جدید لیبارٹریز کے ذریعے سے ایک کسان مویشیوں سے اپنی مرضی کا جنین حاصل کر سکتا ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال کی بات کریں گے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کے حملوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ غزہ اور رفح میں اسرائیلی فوج کی نسل کشی کی کارروائیوں میں مزید 40 فلسطینی شہید اور 224 زخمی ہو گئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل کی دہشت گردی میں اب تک تعداد 37,834 فلسطینی شہید اور 86,858 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں پانی کے لیے جمع ہونے والے فلسطینیوں پر حملہ کیا ہے، جس میں ایک بچے سمیت 5 افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں رہائشی مکانات پر بھی حملے کیے ہیں، جس میں 4 بچوں سمیت کم از کم 6 افراد شہید اور 15 زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق قابض فوج کے وسطی غزہ کے مغازی مہاجر کیمپ پر حملے میں متعدد نہتے فلسطینی شہید ہو گئے۔ وسطی غزہ میں میونسپل پارک کو نشانہ بنانے والی اسرائیلی بمباری میں مزید 5 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق رفح کے شمال مغربی علاقے شکوش سے اسرائیلی فوج کے انخلا کے بعد 5 لاشیں ملی ہیں۔ شجاعیہ محلے سے نقل مکانی کرنے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 60,000 ہو گئی ہے۔ ادھر عرب لیگ، یورپی یونین، سعودی عرب، مصر اور قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی طرف سے 5 یہودی بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف دنیا کے کئی ممالک میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ، یمن اور اردن میں صہیونی فوج کی نسل کشی کی کارروائیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اٹلانٹا میں مظاہرین نے امریکی انتخاب کے سلسلے میں ہونے والے مباحثے کے موقع پر احتجاج کیا۔ شرکاء نے فلسطینی پرچم لہرائے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ یمن اور اردن میں مظاہرین نے ہاتھوں میں کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر اسرائیل کی جارحیت کے خلاف نعرے درج تھے۔ انہوں نے غزہ اور رفح سمیت دیگر علاقوں میں صہیونی حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ہتے فلسطینیوں کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ علاقے میں غذائی قلت کی وجہ سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ عالمی برادری فوری جنگ بندی کے لیے اقدامات کرے۔ روس کے یوکرین پر ڈرون اور میزائل حملوں میں 11 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ روسی فورسز کے جنوبی قصبے پر میزائل حملے میں 2 بچوں سمیت 7 افراد ہلاک اور 31 زخمی ہو گئے، جبکہ مشرقی علاقے نیٹسک پر حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے۔ روسی وزارت دفاع کے ایک ٹیلی گرام پیغام کے مطابق زاپوریژیا کے ایک قریبی علاقے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں ٹرینوں کے ذریعے اسلحہ اور گولہ بارود اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ پیغام میں یوکرینی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ روس نے مزید کہا کہ یوکرین کے ڈرون حملے میں 5 روسی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یورپی دوست ممالک سے اسلحہ اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی فراہمی تیز کرنے کی اپیل کی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ روس جوہری صلاحیت کے حامل درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی تیاری دوبارہ شروع کرے گا۔ صدر پوتن نے روس کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ روس کے ساتھ طے پانے والے تاریخی انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز معاہدے سے دستبردار ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نہ صرف یہ میزائل سسٹم تیار کرتا ہے بلکہ ڈنمارک میں مشقوں کے لیے انہیں یورپ لا چکا ہے۔ اس اقدام سے روس کو مجبور کیا گیا کہ وہ مناسب جواب دے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے قومی اسمبلی تحلیل کر کے 1 ستمبر کو عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ آذربائیجان کے ایوان صدر کے حکم نامے کے مطابق صدر الہام علیوف نے ملک کے قانون ساز ادارے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ اب نومبر میں ہونے والے عام انتخابات 1 ستمبر کو ہوں گے۔ اس سے پہلے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے اسمبلی تحلیل کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے روس پر الزام عائد کیا کہ وہ یوکرین کے خلاف جنگ میں پیانگ یانگ سے میزائل اور گولہ بارود لے کر شمالی کوریا پر ہتھیاروں کی پابندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پیانگ یانگ کے ساتھ ماسکو کا تعاون تعمیری
और जायज़ नौयत का है। हमारे बाहमी ताल्लुकात से अमेरिका समेत किसी को भी कोई खतरा नहीं। शुमाली कोरिया के सफीर ने भी यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हमारे और रूस के दो तरफा ताल्लुकात की तरक्की के बारे में किसी को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अमेरिका ने चीन से भी मुतालबा करते हुए कहा कि वो इलाकाई और आलमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुमाली कोरिया और रूस के साथ फ़ौजी ताउन ख़त्म करे। वाशिंगटन ने बीजिंग और मॉस्को पर इल्ज़ाम लगाया है कि वे शुमाली कोरिया की हौसला अफजाई कर रहे हैं। चीन और रूस का कहना है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें प्योंगयांग को मुश्तिल करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया पर जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स की वजह से 2006 से पाबंदियां आयद कर रखी हैं। ईरान के 14वें सदर का फैसला 5 जुलाई को होगा। गुज़िश्ता रोज होने वाले सदारती इंतखाब में कोई भी उम्मीदवार 50% मतलूबा वोट हासिल न कर सका, जिसके बाद दूसरे इंतखाब के मरहले का ऐलान किया गया है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक सदारती इंतखाब के पहले मरहले में मसूद पज़ेश्कियान और सईद जलीली सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हुए। दूसरे मरहले में मसूद पज़ेश्कियान और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला होगा। सरकारी नताइज के मुताबिक मजमूई तौर पर 2,45,35,185 वोटर्स ने सदारती इंतखाब में अपना वोट कास्ट किया। मसूद पज़ेश्कियान 1,04,15,991 वोट हासिल करके सरे फहरिस्त रहे। सईद जलीली ने 94,73,298 वोट हासिल किए। सदारती इंतखाब में 4 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ ने 33,83,000 जबकि मुस्तफ़ापुर मोहम्मदी ने 20,06,000 वोट हासिल किए। ईरान की इलेक्शन अथॉरिटी के तर्जुमान ने कहा है कि पहले मरहले में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले मसूद पज़ेश्कियान और सईद जलीली के दरमियान 5 जुलाई को मुकाबला होगा। मसूद पज़ेश्कियान एक इस्लाह पसंद सियासतदान है जो मुल्क के वजीर सेहत समेत कई अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। सईद जलीली एक क़दामत पसंद सियासतदान हैं जिन्होंने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और साबिक चीफ जौहरी मुज़ाकरातकार के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं। नाज़रीन, अमेरिका की भारत से एक बार फिर जवाब तलबी। गैर मुल्की सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी पर आलमी क़ुव्वतें भी बोल पड़ी। जून 2023 में मोदी सरकार ने तहरीक खालिस्तान के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की कोशिश की। अमरीकी तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने निखिल गुप्ता नामी ड्रग डीलर को पन्नू कत्ल के लिए हायर किया। निखिल गुप्ता ने किराए के कातिल को गुरपतवंत सिंह के कत्ल की जिम्मेदारी सौंपी। तहकीकाती रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मोदी सरकार और भारतीय एजेंसी रॉ के आला अफसरान भी बराह रास्त मुलव्विस थे। पन्नू कत्ल की साजिश बेनकाब होने के बाद अमरीकी हुक्काम ने भारत को आड़े हाथ में लिया। अमरीकी नायब वजीर खारजा क्रिट कैम्बल ने कहा कि हमने वाज़ेह कर दिया है कि हम भारतीय हुकूमत से जवाबदेही चाहते हैं। कुछ कौमी खबरें शामिल करेंगे। बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की बात करेंगे। बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल के मुआशी फ़वाइद का मुकामी अफराद को मुंतकली का सिलसिला जारी है। ऑयल एंड गैस कंपनी MPCL की जानिब से बुलान, कोयटा, ज़ियारत और हरनाई में सेहत, तालीम, वाटर सप्लाई, बिजली और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मनसूबों से मुकामी अफराद को रोजगार के वसी मौके मुयसर आए। सैलाब से काफ़ी लोगों के घर तबाह हो गए थे। हमने मुस्तहिक़ अफराद के लिए 45 घर तामीर किए। 40 घरों को हम तैयार करें। ये आज की जो ओपनिंग थी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और इंशाल्लाह ताला ये घर हमने कोशिश की है कि जो मुस्तहिक तरीन लोग हैं, जो गरीब भी हैं और जिनका नुकसान भी है उनको भी। उसके अलावा हमारे जितने भी फील्ड्स हैं उसमें तकरीबन 150 से 200 लोकल गार्ड्स हम रखते हैं जो कि इसी इलाके के होते हैं और उन सबको हम तनख्वाह देते हैं। उससे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो जाती है प्लस वो लोग इससे खुश भी हो जाते हैं। मेरे लिए मकान कच्चे थे, ये बारिश हो गया, ये सैलाब आ गया, ये स्कूल है, ये मकान सारे खत्म हो गए और हमारे पास रहने का कोई जगह था ही नहीं। रेंट पे इसी अलग से की मदद से मकान हमको इन्होंने बना के दे दिया। ये परेशानी जो असर में रहा है उसकी उस साल से हमको उन्होंने बना के दिया और हम इसका शुक्रिया अदा करेंगे। NPCL मारी पेट्रोलियम कंपनी जिन्होंने हमारे इलाके में क्योंकि साफ पानी मैसर नहीं था, इन्होंने कंस्ट्रक्शन प्लान का इंतजाम किया। बलूचिस्तान के अंदर जितने भी वसाइल हैं, जितने मादनियात हैं, ये सारे ये निकाल रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये हमारे ही अपने इलाके की तरक्की के लिए। हमें पाक फौज ने और FC ने, क्योंकि ये इलाका ज़रा सिक्योरिटी के लिहाज से सेंसिटिव है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की। लोकल्स ने हमें बड़ी सपोर्ट की जिसकी वजह से हम यहाँ पे मुख्तलिफ ऑयल एंड गैस की एक्टिविटीज़ करने में कामयाब हुए। और NPCL की जानिब से हमें मकान हमारे शहर में बहुत से
नादार और गरीब मिस्किन लोगों को मिला है। कुछ बने तैयार हो गए हैं, कुछ का काम रहता है अभी। बलोचों को बहुत आगे ले जाया जा रहा है, तालीम के लिहाज से, तरक्याती के लिहाज से। नाज़रीन, खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज़ के साथ। जुड़वां शहरों और खिताए पोठोहाट से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच अपनी कामयाबियों के 13 साल मुकम्मल कर रहा है। सीनियर सहाफी जाहिद फारूक मलिक की जेरे इदारत शाया होने वाला अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच इस्लामाबाद अब यूट्यूब, एक्स, फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से तलब करें और विजिट करें www.metrovatch.com.pk। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। लेफ्टिनेंट शहाब हामिद बाजवा शहीद इंतहाई निडर सिपाही थे जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगा लिया। लेफ्टिनेंट शहाब हामिद बाजवा ने 29 नवंबर 2010 को लाइब्रेरिया में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। लवाहकीन ने अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि शहादत का मकाम बहुत बड़ा एहसास है। अल्लाह ताला हमारे शहादा की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। मेरा बेटा लेफ्टिनेंट शहाब हामिद बाजवा शहीद है। इससे पहले भी उसके पास एक एजाज है और वो है गाजी का। अप्रैल 2009 में जब ये पीएमए से पास आउट हुए तो इनकी यूनिट सवात ऑपरेशन जो बड़ा एक कामयाब गर्दाना जाता है, लेफ्टिनेंट शहाब ने रास्ते में जाके यूनिट को ज्वाइन किया और ऑपरेशन राह रास्त में ऑपरेशन के दौरान 1 माह 10 दिन वो दुश्मनों से लड़े, उसमें कामयाबियां हासिल की और उसी दौरान जख्मी भी हुए। और उसकी मिसाल ये है कि ये एक USB है जिस पे वो तलावत सुना करते थे, उनके ट्राउज़र में थी, और ये वो बुलेट है दुश्मन की जो उनकी नी में लगी और क्रॉस करते हुए उसकी डायरेक्शन इस तरीके से चेंज हुई कि जो डॉक्टर सर्जन हैं वो खुद हैरान हो गए कि घुटने में ये गोली लगी और घुटना बच जाए। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से मोजज़ा है। ये एक अज़ाफ़ी एजाज़ है इसका गाजी का। शहीद तो वो है ही हैं और माशाल्लाह उससे पहले वो एज ए गाजी का टाइटल भी ले चुके थे। जब मेरा बेटा शहीद उन्होंने यूनिट ज्वाइन करते हैं तो यूनिट वाले कोई चीज़ें लेकर आते हैं जो कि फ़ौज में ये रवायत है, उसमें ये एक स्टिक है। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि मेरे शहीद बेटे की ये जो स्टिक है ये पाकिस्तान आर्मी में सबसे डेकोरेटेड स्टिक है। ये 2 निशाने हैदर इस पे बने हुए हैं। 12 NLI हैदरान कहलाती है। हैदरान से मुराद के 2 निशाने हैदर, उसके अलावा 17 जुरत, तमगा इम्तियाज, तमगा बसालत, मतलब ये पूरी स्टिक सजी हुई है इस टाइटल। तो मेरा बेटा तो ये स्टिक देख के बड़े खुश हुए और जब उनको ये पता चला कि ये 2 शहीदों की यूनिट है तो सबसे पहले वो कैप्टन कर्नल शेर खां के मज़ार पे गए, उनको सलूट किया और बाकायदा मुझे फ़ोन पे खुशी खुशी बताया कि पापा आज मैं कैप्टन कर्नल शेर खां के मज़ार पे हाज़िरी दी है। उसके लिए ऑनर की बात थी। फिर हवालदार लालिक जान, 2 शहदा की यूनिट। तो मेरा बेटा तो शहीद बहुत खुश था। मेरे लिए ये एजाज़ है कि मैं 12 NLI का अफसर बन के यहाँ पे सर्व करने आया हूँ, तो हमारे लिए भी ये बड़ी खुशी की बात। उसके 2 टाइटल हैं जो हमें खुश करते हैं, एक गाजी का और एक शहीद का। और हमारे बेटे ने अपने मुल्क की खातिर जो कुर्बानी दी है वो इंशाअल्लाह ताला ताहियात जिंदा रहेगी। शहीद का मकाम हासिल करना ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन हमारी फैमिली के लिए और भी एजाज़ आते हैं कि ये शोहदा की फैमिली है। अल्लाह ताला हमारे फैमिली के शोहदा की कुर्बानियों को कबूल करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। हाँ, छोटा सा था जब पहले दिन मैंने उसको तैयार करके स्कूल भेजा, वो बहुत नीट एंड क्लीन रहता था, छोटा सा
और स्कूल में वो शरारतें भी बहुत करता, बहुत अच्छा हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था। साबित कदम वो स्कूल में भी रहा माशाल्लाह। उसके बाद बड़ा हो गया, वो उसने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में माशाल्लाह उसने पहले गाजी का मेडल लिया, उसके बाद उसने शहादत छोटी सी उम्र में ले ली। यूएन मिशन पे चले गए, वहाँ भी पाकिस्तान का उसने नाम रोशन किया और उसके साथ पूरे पाकिस्तान का और हमारा भी नाम फ़ख्र से नाम बुलंद किया उसने। और बहुत खुशी होती फिर ये यूएन मेडल उसका, जो मैं GHQ गई फिर उसका ये मैंने मेडल लिया। बहुत खुश होते हैं। शहीद कभी भी नहीं मरते, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, तो वो अभी भी ज़िंदा ही हैं हमारे साथ, तो हमें उस पर बहुत फ़ख्र है। मैं अपनी माँ से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को, बहादुर बच्चों को इस कौम के लिए तैयार करें और हमारे वतन पाकिस्तान को और मजबूत करें। और जो हम सुकून से इस मुल्क में रह रहे हैं, इन्हीं बच्चों की कुर्बानियों की वजह से रह रहे हैं। मैं लेफ्टिनेंट शहाब आमिद बाजवा शहीद का छोटा भाई हूँ। आज तक कभी फील नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि शहीद तो ज़िंदा होते हैं। हर बात पे भाई का जिक्र होता रहता है। भाई अक्सर ख्वाब में आते रहते हैं, सबके ही आते हैं, वालदा के भी आते हैं, मेरे भी आते रहते हैं। कुछ याद रह जाते हैं, कुछ नहीं याद रह जाते। कभी उदास हो जाते हैं तो यादों को ताज़ा करने के लिए ये PMA का इसका ये वो ट्रंक है और शहाब की सारी यादें इसके अंदर मौजूद हैं। और फिर हम इसको खोल के वो देखते रहते हैं। ये वो झंडा है जो यूनिट की तरफ से मिला था उसकी शहादत के ऊपर। बाकी ये वो यूनिफॉर्म है, जब ऑपरेशन राह रास्त में बुलेट इंजरी हुई थी तो ये वो यूनिफॉर्म पहना हुआ था। ये पेंट वगैरह उसकी सारी वो कटी हुई, फटी हुई, पड़ी हुई है। ये उस वक्त की याद है ये बेटे की। उसकी यादों को ताज़ा करने के लिए कभी कभी इस ट्रंक को खोल लेते हैं। इसकी यादें हमारे पास महफूज हैं। जब बेटे की शहादत हुई यूएन मिशन पे, और ये वो बैग है जो उसके सामान से लाइबेरिया से ये आया था, क्योंकि ये यूएन मिशन लाइबेरिया में था, तो ये बैग वहाँ से आया था इसके सामान के साथ। तो बस इसको भी हम खोल के जब कभी कभी उदास हो जाते हैं या उसकी याद में शिद्दत आ जाए तो इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। नाज़रीन, महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के मौके पर गुरुद्वारा पंजा साहब से जन्म स्थान ननकाना साहब में तकरीबात हुई, जिसमें भारत समेत दीगर ममालिक के हज़ारों सिख यात्रियों ने शिरकत की। रिहाइश और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम पर सिख यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुरीदी का जो भी मतलब प्रशासन का और आर्मी और पुलिस का बहुत बहुत मैं रेड़ियाँ धन्यवाद हाँ, जिन्होंने साडा बहुत ज़्यादा मान सत्कार किया। और सलमान इन्ना स्वागत किया तो बहुत वधिया सानू लग्या, बहुत खुशी मिली। उस तो अगे जदों असी गुरुद्वारा पंजा साहिब वाल गए, उत्थों का अरेंजमेंट भी देख के बहुत वधिया लग्या। इत्थों के भाईचारे लोगों नाल मिले, उन्हां नाल मिल के इन्ना प्यार सानू मिलिया ते कहण ते कथन तो परे है। हर साल 30 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पार्लियामेंट्रिज्म का दिन मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत और मकासद के बारे में देखते हैं अरसलान असद की रिपोर्ट। जमहूरी मुआशरों में अवाम के मुंतखब पार्लिमान की बुनियादी अहमियत होती है। इस वक्त दुनिया के 190 मुल्कों में किसी न किसी सूरत पार्लिमान को वजूद है। इनमें से पाकिस्तान समेत 180 ममालिक इंटरनेशनल पार्लिमानी यूनियन के रुकन हैं। इस यूनियन का क़याम 30 जून 1889 में अमल में आया और इसी तारीख की मुनासबत से पार्लिमान के आलमी दिन को मनाने का फैसला 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद के जरिए किया गया। पाकिस्तान IPU का सरगर्म और फाल रुकन रहा है। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने हाल ही में IPU इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। Pakistan is proud to have been a member of IPU since 1948. We greatly appreciate and welcome the IPU's effort for peace and understanding across globe, and we assure you of our continued support in this regard.
पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि पाकिस्तान का पार्लिमान 24 करोड़ आवाम की उमंगों का हकीकी तर्जुमान और आइन साज इदारा होने की वजह से रियासत के बाकी तमाम इदारों से बालादस्त हैसियत रखता है। पार्लिमान एक वाहिद फोरम है जहाँ पे कमेटीज़ बनती हैं, एक दूसरे के मसाइल को सुना जाता है, हल्के के आवाम के मसाइल को सुना जाता है, और किसी भी किस्म की अगर जमहूरियत को खतरात होते हैं तो वो भी पार्लिमान ही हल कर सकता है। अगर आवाम को आपने पावर देनी है, डेमोक्रेसी करनी है, फिर तो आपको असम्बली को मजबूत करना पड़ेगा। हमें ये ज़ाहिर यकजहती करना चाहिए कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, इसकी पार्लियामान की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। आप पार्लियामान पर इत्मीनान करें, लोगों को मुंतखब करके भेजें, लोग आपके हर दुख का मुदावा करेंगे। IPU की सदर और सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि बदकिस्मती से दुनिया के कई मुल्कों में लोगों का अपने मसाइल के हल के लिए सियासी इदारों पर से एतमाद ख़त्म हो रहा है। जमहूरियत को खुद अवामी और कौम परस्त तहरीकों के चैलेंजेस का भी सामना है। ऐसे में पार्लिमानों के लिए एक बैनुल अक़वामी दिन का इनेकाद ख़ास तौर पर अहमियत का हामिल है। अगर जमहूरियत को फलना फूलना है तो पार्लिमान का मजबूत और शफाफ होने समेत अवाम को जवाबदेह होना भी ज़रूरी है। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा वादी कश्मीर में हिंदू अमरनाथ यात्रा शुरू होते ही काबिज हुकाम ने इस्लामाबाद, कुलगाम, श्रीनगर और गांदरबल अजला में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इन इलाकों में सिक्योरिटी के कई हिसार कायम किए गए हैं, जबकि 24 घंटे सख्त निगरानी की जा रही है। भारतीय हुकूमत ने पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेज के हजारों इजाफी एहलकार तैनात किए हैं, जिससे मकामी बाशिंदों में तशवीश पैदा हुई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से हिंदू अमरनाथ यात्रा से पैदा होने वाले माहौलियाती असरात पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी बैनुल अक़वामी मुदाखलत का मुतालबा किया है। हुर्रियत तर्जुमान ने भारतीय हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो जुम्मे और ईद की नमाजों पर पाबंदियों समेत कश्मीरी मुसलमानों को उनके हुकूक से महरूम कर रही है, जबकि हिंदू यात्रियों को बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी और सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लद्दाख के करीब एक तरबियती मश्क के दौरान दरियाई शिवक में सैलाब से भारतीय फौज का टैंक बह जाने से एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 5 भारतीय फौजी हलाक हो गए। इस्लामाबाद से विहाड़ी जाने वाली बस में दौरान सफर आग लग गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस में आग M4 पर टोबा टैक्सन के करीब लगी। मोटरवे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बस से 46 मुसाफिरों के उतार कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। फायर ब्रिगेड ने बस में लगी आग बुझा दी, ताहम पूरी बस जलकर खाकिस्तर हो गई। कीमती इंसानी जानों की हिफाजत के लिए आग बुझाने वाले आलात की मदद से जल्द कार्रवाई अमल में लाई गई। मुसाफिरों के सामान को भी काफी हद तक बचा लिया गया। एडिशनल IG पुलिस साउथ पंजाब कामरान खान ने खानेवाल का दौरा किया और इस मौके पर कामरान खान ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। बाद में एक मीटिंग में मुहर्रम उल हराम के महीने में सिक्योरिटी का जायजा लिया। मुतल्लिका हुकाम ने तफसीली ब्रीफिंग भी दी। एडिशनल IG पुलिस ने खिदमत मरकज और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का मुआयना किया। खिदमत मरकज और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और थाना सदर स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सदर खानेवाल का विजिट भी किया। उन्होंने कहा कि जिला खानेवाल में मुहर्रम में कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं होना चाहिए। जिला पुलिस किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी में तालीम के सफ़ीर और मुस्तक़बिल के रहनुमा के मौजू पर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की मारूफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स के तलबा तालिबात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नई नस्ल को हुसूल तालीम के साथ साथ उनके जहनों में हुनर और खुद इत्मादी पैदा करना है। माहिर स्कॉलर्स और टीचर्स ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली लेक्चर्स दिए। हुंजा के कदीम सकाफती त्यौहार गिनानी को रिवायती अंदाज में तारीखी बल्तित किले में मनाया गया। इस सकाफती त्यौहार में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और सूबाई वज़रा ने खुसूसी शिरकत की। इस तारीखी त्यौहार को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी मौजूद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं इकराम नशमी। वादी हुंजा के कदीम सकाफती त्यौहार गिनानी अपने रिवायती अंदाज में बल्तित के 900 साल कदीम तारीखी किले में मनाया गया। साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मीर गजनफर अली खान और इनकी फैमिली ने बल्तित हेरिटेज ट्रस्ट और दरबार होटल के ताउन से इस तारीखी त्यौहार की इनेकाद की, जिसमें वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान, सूबाई वजीर फतहुल्लाह खान, वजीर इत्तलात ईमान शाह समेत सरकारी व गैर सरकारी इदारों के सरबराहान, अवाम और सयाहों ने शिरकत की। गिनानी त्यौहार, जिसको फसल की कटाई की त्यौहार भी कह सकते हैं, ये साबिक रियासत हुंजा नगर और यासीन में शुमाली पाकिस्तान में
सदियों से इसको मनाते आए हैं और इसकी तारीखी सिलसिला जो है वो ईरान से मिलती है। और फिर कोविड के आने की वजह से 2-4 साल इसको हमें नहीं करना पड़ा और अब दोबारा से इसकी रिवाइवल की है और इंशाल्लाह ये चीज़ जो है ये आगे बढ़ती जाएगी। प्रोग्राम में रस्म गिनानी के अलावा रिवायती रक्स और इलाके के रिवायती खानों का भी इंतजाम किया गया था। Honza, the people of Honza, and the Elizabeth stand is awesome and wonderful, great, and we love to see the तारीखी तौर पर यह त्यौहार कदीम ज़माने से जून के महीने में नए फसल के पकने की खुशी में शुक्राने के तौर पर मनाया जाता रहा है। इकराम नजमी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, वादी हुंजा। 3 दहाइयों से पाकिस्तान यूरोपीय इदारा बराए जोहरी तहकीक कारकुन है। दुनिया के इसरार और रमूज पर साइंसी तहकीक करने वाली लेबॉर्ट्री में पाकिस्तानी साइंसदानों ने अपनी मेहनत से काबिल जिक्र किरदार अदा किया है। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान अपनी इस रिपोर्ट में। जिनेवा के मुज़ाफ़ात में स्विट्जरलैंड और फ्रांस के इशराक से बनने वाली लेबॉर्ट्री सर्न कहलाती है, जिसे तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा मौजज़ा भी कहा जाता है। पाकिस्तानी साइंसदानों ने लार्ज हेड्रॉन कोलाइड्स के तजुर्बात, ट्रैकर अलाइनमेंट, 320 रेज टेप प्लेट चैम्बर्स बनाए और इंस्टॉल करने के साथ ही CMS कंप्यूटिंग, WLCG और डाटा के तजर्बे में ताउन समेत अहम किरदार अदा किया। Pakistan is fully engaged in the scientific program but can also bid for contracts. Pakistan can have staff members, etc. So Pakistan has made very important contributions to the development of the scientific program at CERN, both the experiments, in particular CMS and the ALICE experiments, but also to the development of detector technologies, for example. Very strong both in the physics and in engineering. Here in Islamabad, the colleagues working at CERN have established a semiconductor or silicon detector laboratory to participate in the construction of the next generation silicon trackers. These are the most complex detectors we have ever developed. कायनात की हकीकत जानने के लिए सर्न में सतह जमीन से 100 मीटर नीचे 27 किलोमीटर लंबी धाती सुरंग बनाई गई, जिसके चैम्बर का एक हिस्सा पाकिस्तान में बना और इस पर बाकायदा पाकिस्तान का झंडा भी कंधा किया गया। पाकिस्तान के जो साइंसदान हैं और हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस सर्न के एक्सपेरिमेंट्स में भी हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह सर्न के लिए पाकिस्तान बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स जो उनके मुख्तलिफ डिटेक्टर्स में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हमने यहाँ पे बना के उनको दिया है। दुनिया को जोड़ने वाली वर्ल्ड वाइड वेब WWW हो या CT स्कैन, MRI और लेजर के जरिए बीमारी और कैंसर समेत मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज, ये सब सर्न लेबॉर्ट्री में होने वाली इजादात से ही मुमकिन हुए। सर्न में मादे को काबू रखने पर तजुर्बात जारी हैं। अगर ये तजुर्बात कामयाब हो गए तो पूरी दुनिया की तवानाई की जरूरत चंद सेकंड में पूरी हो जाएगी। बिजली और पेट्रोल की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब हुकूमत की तरफ से बेकरी आइटम प्राइस में कमी के अहकामात की तामील में रहीम यार खान के बेकरी मालिकान ने भी कीमतें कम कर दी हैं। तफसील बता रहे हैं इशफाक अहमद। आटा और मैदे की कीमतों में 48% कमी के बाद पंजाब की हुकूमत ने आवाम को बेकरी मसनूआत पर भी तारीखी रिलीफ दिया है। ज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने महंगाई के असरात को कम करने के लिए पंजाब भर में बेकरी आइटम की कीमतों में कमी कर दी है। कीमतों में कमी और क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी और ज़िली इंतज़ामिया काम कर रही है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो प्राइस कम किए हैं उससे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है और इस तरह के स्टेप्स जो हैं पॉजिटिव स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो है रोज़मर्रा की एशिया ख़रीदने में आसानी हो सके। से जो प्राइजेस थी ना वो गवर्नमेंट ने बहुत इस दफ़ा ना कम कर दी हैं, तो आवाम के लिए भी बहुत बेहतर है और इससे हमें भी फ़ायदा है और बहुत अच्छा है ना, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। आटा गंदम का रेट कम हुआ, उसकी वजह से हमारी बेकरी प्रोडक्ट्स पर भी असर पड़ा है और हमने उसके प्राइस कम किए जिसका डायरेक्ट फ़ायदा आवाम को मिला। लेकिन इसके साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट भी पहले से कम हुई है। बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी के बाद अब रहीम यार खान में 750 ग्राम की डबल रोटी की कीमत में 80 रुपये की कमी के बाद अब 230 रुपये की बजाय अब 150 रुपये, 400 ग्राम की छोटी डबल रोटी की कीमत 40 रुपये कमी के बाद अब 120 रुपये की बजाय 80 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। रस का 400 ग्राम का पैकेट 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। पंजाब हुकूमत की तरफ से रोटी और नान की कीमतों में कमी के बाद अब बेकरी आइटम की कीमतें कम होने से महंगाई में कमी हुई है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुँच रहा है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान।
سری لنکا سے آئے فنکاروں نے دھوم مچا دی. اپنی ثقافت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستانی گیت بھی گنگنائے اور حاضرین سے خوب داد وصول کی. تفصیل بتا رہی ہیں صدرہ فاطمہ. کراچی کی خوبصورت شام ہوئی سری لنکن رقص و موسیقی کے نام. سری لنکا سے آئے فنکاروں نے اپنی دل فریب ثقافت اور رقص و موسیقی سے حاضرین پر سحر طاری کر دیا. جہاں سری لنکا سے آئے فنکاروں نے اپنی باکمال صلاحیتوں کا جادو جگایا. سری لنکا اینڈ پاکستان brotherly countries, we always stand together and we want to make the relationship between the two countries to the next level. And amazing people in Pakistan. This is my very first time in Pakistan and I would like to come again and perform with you. It's really good day. Crowd is really good and they engage with me really well and we did a good fantastic show. سری لنکن فنکاروں کی جانب سے پیش کی جانے والی پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور زبان سے ناواقفیت کے باوجود موسیقی کی منفرد دھنوں سے لطف اندوز ہوئے. سری لنکن فنکاروں کی جانب سے پیش کی جانے والی اس پرفارمنس میں نہ صرف ان کا شاندار ذوق دکھائی دیا بلکہ ان کی جانب سے اپنی ثقافت کی عکاسی بھی کی گئی. صدرہ فاطمہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیاحتی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے خصوصی روڈ شو کا انعقاد کیا گیا. اس خوبصورت روڈ شو اور الحمرا میں سری لنکن ثقافتی پروگرام کی تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم. کراچی کے بعد لاہور میں ہونے والی سری لنکن روڈ شو کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان سیاحت کے فروغ کے موجود امکانات کا جائزہ لینا اور اس سلسلے میں مقامی اور سری لنکن کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. تقریب میں ٹور آپریٹرز، میڈیا کے نمائندوں، تاجر تنظیموں اور صحتی شعبے سے وابستہ سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی. لاہور کے الحمرا آرٹ کونسل میں سری لنکن ثقافتی پروگرام کنیا کا انعقاد کیا گیا جس میں سری لنکن فنکاروں نے اپنی خوبصورت ثقافت کے رنگ بکھیرے. سری لنکن گلوکار سونل نے پاکستان کے سپر ہٹ گانے گا کر شرکا کے دل جیت لیے. Because we want more and more people from Pakistan to travel to Sri Lanka and more Sri Lankans traveling to Pakistan, especially to Lahore because we have a direct flight to here. This function majorly they organize to collaborate the cultures together, the Pakistani culture and the Sri Lankan cultures together. So I think the people enjoyed a lot and they studied so many things about Sri Lankan culture. We had a wonderful event and this is a part of a series of activities we are organizing to promote Sri Lanka tourism in Pakistan. سری لنکا کے سفیر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا سارا رشید نے کہا کہ ثقافتی سرگرمیاں امن کے فروغ اور استحکام کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان فن سے محبت کرنے والے افراد کا ملک ہے جن کے مہمان نوازی کی ہر سو دھوم ہے. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی. ناظرین، کراچی میں آج بھی موسم گرم جبکہ مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوگی. موسم کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں حسن ناصر صدیقی. جی حسن ناصر. کراچی میں آئندہ 3 روز تک موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے. آج پارہ 38 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 60% سے زائد ہونے کے باعث گرمی کی شدت 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ محسوس کی جائے گی. اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل سے شہر میں درجہ حرارت میں کمی آ جائے گی اور پیر کو پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ جامشورو، ٹھٹھا، بدین، تھرپارکر اور عمرکوٹ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. سندھ کی حکومت نے کراچی کے مختلف علاقوں میں ہیٹ اسٹروک سینٹرز قائم کیے ہیں. اس کے علاوہ جب گھر سے باہر نکلیں تو ایک گیلا تولیہ یا کپڑا اپنے سر پر رکھ لیں تاکہ گرمی کی شدت سے محفوظ رہ سکیں اور ہیٹ اسٹروک کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور خاص طور پہ بچے، بوڑھے اور اس طرح کے افراد جو کہ دل کے امراض میں مبتلا ہیں وہ گھر سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں. غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں ایسی چیزوں کو نہ لائیں کہ جس میں مشقت زیادہ ہو. لاہور سمیت پنجاب بھر میں حبس کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. آج ہوا میں نمی کا تناسب 58% تک رہنے کا امکان ہے. لاہور سے موسم کی صورتحال بتا رہے ہیں مدثر خان.
لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج صبح سے ہی سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث درجہ حرارت میں تو کمی آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ حبس میں شدید اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 58% تک رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے کے باعث جو ہے وہ حبس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق حبس کی اس لہر میں جو ہے شہری زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور کسی بھی طور اپنے جسم میں پانی کی کمی کو نہ ہونے دیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق تمام ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز آپریشنل ہیں، جہاں پر تمام جو مریض ہیں ان کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے کی جانب سے مونسون سے قبل ہی تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جی، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، تاہم محکمہ موسمیات نے چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ظاہر کی ہے۔ تفصیل سعید وزیر سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم کی صورتحال کی پیش نظر ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم رہے گا۔ کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہے گا، تاہم بالاکوٹ، سوات، مانسیرہ اور ایبٹ آباد میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم رہے گا، تاہم لاہور، مری، گلیات، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ میں بارش کا امکان ہے۔ صوبہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے، تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق خزدار، اواران اور لسبیلا میں بارش ہوگی۔ نوکنڈی میں 47 سینٹی گریڈ، باولپور اور دال بدین میں 46 سینٹی گریڈ، سبی، دادو، بکر اور جیکب آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے پانی کی زیادہ استعمال اور سر ڈانپنے کی ہدایت کی ہے۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ رات میں شمال مشرقی پنجاب، جنوب مشرقی سندھ، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوار، جنوبی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ نوکنڈی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، بہاولپور اور دالبندین 46، جبکہ سبی اور دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔